Assalamualaikum students, how are you all? I hope you will be fine at your home. This is Oxford Academy School. I am your SST teacher, Miss Alicia of class 3. Students, as you know that your final term has been started, now you have to make a title page of final term in your SST CW copy. Then we have provided you a syllabus. Where syllabus is written, you have to copy down the syllabus in your CW copy, and then you have to copy down word list in your CW copy. Students, your first chapter is early men, means पुराने ज़माने के लोग. Now you have to make a title page of chapter 1 early men in your CW copy, then you have to start your work. Now I am explaining your chapter. Long ago, man did not live in communities. He had no home. He used to live in the forest. He lived on wild fruits and roots. He roamed all over looking for food. There were wild animals in the forest. Lion, tigers, elephants, bears, and wolves were quite common. He was afraid of wild animals. He tried to kill those animals with stones and clubs and ate their flesh. He had no clothes to wear. बहुत पहले लोग जो होते थे वो गिरोह में या बिरादरियों में नहीं रहते थे. उनके पास ना ही घर थे. वो सिर्फ जंगल में रहते थे और जंगली फलों और जड़ों पर गुजारा करते थे. वो हर जगह खाना तलाश करते थे. जंगल में वो जंगल में रहते हैं. वहाँ पर जंगली जानवर भी होते थे जैसे शेर, चीता, हाथी, भेड़िया और रीछ. वहाँ पे बहुत कॉमन होते थे ये जानवर. वो वहाँ से जानवरों से डरते भी थे. वो ना जानवरों को मारने के लिए पत्थर या किसी और चीज़ का स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, भारी भारी पत्थरों का, ताकि वो जानवर को मार सकें. और वो उनका फ्लैश जो सीना होता है ना उसको खाते थे. ठीक है. उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए. Early man slowly developed himself. He wanted to protect himself from heat, cold, and wild animals. He started living in caves. He covered his body with leaves and bark of trees. पुराने ज़माने के लोग ने आस्ता आस्ता तैयारी इजादें करनी शुरू की. उन्होंने अपने आप हिफाजत के लिए अपनी आप की हिफाजत के लिए ठंड से, गर्मी से और जंगली जानवरों से रहने के लिए अपने आप को प्रोटेक्शन हिफाजत करना शुरू कर दी. वो आस्ता आस्ता गाँव में रहना शुरू हो गए, गुफ़ा में. और वो अपने जिस्म को कवर अप करने के लिए पत्तों का या बार्क ऑफ ट्रीज, जड़ें नहीं होती दरख्तों की जड़ों से अपने आप को छुपाते थे. As the time passed, the early man changed. He learned to make fire by rubbing two stones and sticks. It was a great discovery. It made his life somewhat easy. With fire, he cooked, kept himself warm, and safe from dangerous animals. For his safety and protection, he started living together. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पुराने ज़माने के लोग चेंज होना शुरू हो गए. वो लोग सीख गए थे कि दो पत्थरों को अगर आपस में रगड़ेंगे तो आग निकलती, और दो स्टिक्स को भी. ये बहुत अच्छी इजाद थी और ये चीज़ उनके लिए आसानी पैदा करना शुरू हो गई. वो आग से खाना बनाते थे, अपने आप को गर्म रखते थे और सेफ भी रखते थे, और डेंजरस एनिमल और अपने आप को जानवरों से बचाते सेफ भी करते थे. वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए वो एक साथ रहना शुरू हो गए. With the passage of time and his growing needs, the early man changed further. He began to melt metals such as copper and iron. He made better weapons for hunting and defense. और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था. लोग, वहाँ के पुराने ज़माने के लोग बदलते रहते थे, चेंज होते रहते थे. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाना सीख ली थी. जैसे वो आग मेटल को मेल्ट करते थे, उसमें से कॉपर और आयरन को मेल्ट करते थे, और उसमें से अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने वेपन्स यानी हथियार बनाना शुरू कर दिए. He began to build houses. Man invented a system of picture writing. He drew picture with pieces of coal. Afterwards, these pictures developed into set of characters or alphabets for different languages. The invention of writing is considered to be the beginning of civilization. It enables men to keep record of past happening.
उसके बाद उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए और नई नई इन्वेंशंस होने लगी। उन्होंने राइटिंग करना सीखी और वे जो कोल होता है ना ब्लैक कलर का, उससे उन्होंने अपनी राइटिंग मतलब दीवारों पर लिखते थे। और वो जो लिखते थे आजकल वो अल्फ़ाबेट्स की ज़बान में प्रिंट हो गए हैं, जो अभी तक मौजूद हैं। न्यू न्यू लैंग्वेजेस में वो आ गए हैं। और वो उस इन्वेंशन को, वहाँ से हमारी इन्वेंशन स्टार्ट हुई, वहाँ से लोगों ने पढ़ना सीखा और वो रिकॉर्ड आज तक है पास्ट की चीज़ें, ताकि आजकल के लोग पुराने ज़माने की चीज़ें कैसे होती थी वो देख सकें। Tools, weapons, and utensils and cave painting have been discovered in different parts of the world. We study them to find out how early people lived. टूल्स थे, वेपन्स थे, हथियार थे, यूटेंसिल्स बर्तन, और केव गार पेंटिंग, गार था वो वहाँ पे पेंटिंग करते थे। वो बिन डिस्कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाई गई हैं और आजकल के लोग उसे पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड हेयर। आई होप you will understand it very clearly. Read 2 to 3 times again, and if you are facing any difficulty, so again you can watch this video. Thank you for listening. Allah Hafiz.